اور اللہ بھی اس بندے سے محبت کرتا ہے جو اللہ کے بندوں سے محبت کرے، جو اللہ کے بندوں سے محبت کرے اللہ کی رضا کے لیے، چاہے کوئی بھی ہو۔ بیوی سے محبت کرو، بھائی بہنوں سے محبت کرو، ماں باپ سے محبت کرو، یا کسی سے بھی محبت کرو، حرام سے بچو، ناجائز سے بچو، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ ہی کے لیے۔ ہاں، جائز اور سچی محبت کرو، جو اللہ کا حکم ہے اسے پورا کرو۔ آج ہم کیا کرتے ہیں؟ جس ماں نے جنم دیا اس ماں کو رسوا کر دیا، جس باپ نے اپنی اولاد کے لیے اپنی جوانی ختم کر دی، سب بچوں کے نام اپنی جوانی قربان، اپنی محنت کا پسینہ اتنا بہایا کہ اپنی اولاد کو پروان چڑھایا، جوان کیا، ان کو اس مقام تک پہنچایا کہ وہ اب اپنے فیصلے خود کر سکتے ہیں، وہ اپنے سوچ وچار خود کر سکتے ہیں، اور اپنی زندگی اپنے طریقے سے اب خود بسر کر سکتے ہیں۔ ہاں، اس قابل بنایا، اور پھر ہم ان کے احسانات کو بھلا دیں، ان سے محبت نہ کریں، اور جبکہ یہ تو ماں باپوں اور اللہ کہہ رہا ہے جس نے اللہ کے بندوں سے محبت کی اللہ بھی ان سے محبت کرتا ہے، اور پھر ہم اللہ کے بندوں کو ناراض کریں، پھر ہم اللہ کے بندوں کا دل دکھائیں، پھر ہم اپنے ہی ماں باپ کا دل دکھائیں، اپنی بھائی بہنوں کا، اپنے ہی بیوی بچوں کا۔ یہ کیسی عقل بندی ہے، یہ کیسی صلاحیتیں ہیں میرے بھائیوں؟ آج کے دور میں اگر دیکھا جائے تو سب کی غلطی ہے، ایک گناہگار نہیں ہے، صرف ہم ہی گناہگار نہیں ہیں، صرف لڑکیاں ہی گناہگار نہیں ہیں، صرف ماں ہی گناہگار نہیں ہے، صرف باپ ہی گناہگار نہیں ہے، صرف بھائی بہن ہی گناہگار نہیں ہیں، سب برابر کے حصے دار ہیں، کسی نے کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ اللہ کے بندو، بڑی مختصر زندگی ہے۔ ہمارے نبی نے فرمایا کہ تم ایک ہاتھ دریا میں ڈالو اور اسے باہر نکال کر دیکھو کہ تمہاری انگلیوں پر پانی کی کتنی مقدار لگی ہے، جتنی مقدار تمہاری انگلیوں پر پانی کی لگی ہے یہ دنیا کی زندگی ہے، اور وہ سامنے جو وہ آخرت کی زندگی ہے، بڑی مختصر زندگی ہے۔ پھر ہم اسے اتنی سی زندگی کو نفرتوں میں بتا دیں، لوگوں سے حسد کرتے رہیں، بغض کرتے رہیں، اپنے ماں باپ کا دل دکھاتے رہیں، اپنی بیوی کا دل دکھاتے رہیں، بیوی شوہر کا دل دکھاتی رہے۔ بتاؤ تو صحیح، ماں باپ بڑی محبت کرتے ہیں اپنے اولاد سے، بڑی محبت کرتے ہیں، لیکن کچھ ماں باپ ایسے بھی ہوتے ہیں بڑے ظلم کرتے ہیں، بڑی بدسلوکی کرتے ہیں اپنی اولاد کے ساتھ، اور کچھ اولادیں بھی ہوتی ہیں کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ بڑی بدسلوکی کرتی ہے۔ کہیں عورت صحیح نہیں ہے تو کہیں آدمی صحیح نہیں ہے، کلچر چاروں طرف سے بگڑا پڑا ہے، ماحول ہم نے چاروں طرف سے خراب کر رکھا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ کیسے سدھرے گا؟ بتاؤ تو صحیح، کیسے سدھرے گا؟ ارے ہمیں ہی سدھارنا پڑے گا۔ اگر میں ٹھیک ہوں، اگر ہم ٹھیک ہیں تو سب ٹھیک ہیں، ساری دنیا ٹھیک ہے۔ اگر مجھ میں ہی کمی ہے، میں ہی خراب ہوں، تو سب میں کمی ہے، سبھی خراب ہیں۔ پھر جو ہم میں ہوگا ہمیں وہی نظر آئے گا، جیسی ہماری نیت ہوگی ایسے ہی ہماری زندگیوں میں لوگوں کے رویے ہوں گے، اور پھر ہم کہیں کہ یہ اچھا نہیں ہے، یہ ایسا ہے، یہ بدسلوکی کرنے والا ہے، یہ بڑا برا انسان ہے، پھر ہم یہ کہیں تو میرے بھائیوں بڑی گمراہی ہے، بڑی نادانی ہے۔ یہ دیکھیں کہ ہم کیسے ہیں، میں کیسا ہوں۔ کہیں میں اپنے ماں باپ کا دل تو نہیں دکھا رہا ہوں، کہیں میں اپنے ماں باپ کا دل تو نہیں دکھا رہی ہوں، کہیں میں اپنے شوہر کا تو دل نہیں دکھا رہی، کہیں میں اپنی بیوی کا تو دل نہیں دکھا رہا۔ ہم اپنے اندر گمان کریں، اپنے اندر دیکھیں۔ اللہ کی قسم، اگر ہمیں اپنے گھر کا کلچر بدلنا ہے، اپنے گھر کو صحیح لائن پر لانا ہے، تو ہمیں سب سے پہلے خود کو بدلنا پڑے گا، اب دیکھو نا، لوگ کتنی قربانیاں دیتے ہیں، کتنی بڑی بڑی قربانیاں دیتے ہیں ہم لوگوں کے لیے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کون کیسی قربانی دے رہا ہے، ہمیں خبر بھی نہیں ہے۔ میرے لیے بھی کسی نے کوئی قربانی دی ہے؟ بتاؤ تو صحیح، آپ کے لیے کسی نے قربانی دی ہے، یا آپ نے کسی کے لیے قربانی دی ہے؟ پتہ ہی نہیں کس نے کس کے لیے قربانی دی ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں میرے دوستو، سنو، کس نے کس کے لیے قربانی دی ہے۔ میرے لیے بھی اس دنیا میں بہت قربانیاں دی گئی ہیں، اور آپ کے لیے بھی اس دنیا میں بہت قربانیاں دی گئی ہیں۔ اب وہ قربانیاں کیا ہیں ہم نے غور نہیں کیا تو ہمیں پتہ بھی نہیں ہے، تو کسی کے احسان بھی ہمیں یاد نہیں ہے، تو میرے بھائیوں ان چیزوں پہ غور کرو۔ اللہ کی قسم، جب غور کریں گے تو لوگوں سے محبت کرنے والے بنیں گے، لوگوں کے احسان سمجھنے والے بنیں گے، لوگوں کی محبتوں کو پہچاننے والے بنیں گے، اور ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنے والے بنیں گے،
हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करने वाले बनेंगे। अभी मैंने इससे पहले एक पीछे वीडियो अपलोड करी, उसमें मैंने पूरा माँ बाप के बारे में बताया है। जितना मुझसे हो सका है मैंने उसमें माँ बाप के बारे में बताया है कि माँ बाप ने हमारे लिए कैसी कैसी मुसीबतें उठाई हैं, कैसी कैसी मशक्क़तें उठाई हैं, कैसी कैसी तकलीफ़ें बर्दाश्त की हैं, कैसे कैसे दर्द व गम झेले हैं, मैंने उसमें बताया है। आप देखें तो सही। फिर हम कहते हैं कि माँ बाप ने हमारे लिए क्या किया है, फिर हम ये कहते हैं। हाँ, मैंने इससे पीछे वाली वीडियो कल ही अपलोड करी, आप उसे सुने। माँ बाप ने हमारे लिए कितनी कुर्बानियाँ दी हैं नहीं पता है? बताओ तो सही। 9 महीने पेट में रखना, उस दर्द को बर्दाश्त करना, जब बच्चा पैदा होता है मामूली है, मौत और ज़िंदगी का खेल है, मामूली बात है ये कि इंसान बचा भी ना भी बचा। मेरे भाइयों, बड़ी डेंजर सिचुएशंस हैं, बड़ी डेंजर, बड़ा ख़तरनाक वक्त है। वो दुखों का बर्दाश्त करना किसके लिए बताओ? औलाद के लिए। फिर औलाद कहे कि माँ बाप ने क्या किया है, फिर माँ बाप को रुस्वा करना, फिर माँ बाप की मोहब्बत को ना पहचानना, उस माँ बाप ने जो अपने पेट का काट कर अपनी औलाद को खिलाया उनको जलील करना, उनका बुढ़ापे में सहारा न बनना, जिन्होंने अपने आप को ना देखा, अपनी औलाद को देखा कि अगर ये ठीक है तो हम ठीक हैं, अगर ये सही है तो हम सही हैं। बताओ तो सही, इन्होंने क्या कुछ नहीं किया, हम क्या कर रहे हैं इनके लिए, क्या कर रहे हैं हम इनके लिए? बताओ तो सही, सोचो तो सही। और फिर हम कहें कि हमारे लिए किसने कुर्बानियाँ दी हैं? माँ बापों ने कुर्बानियाँ दी हैं, हमारी बीवियों ने कुर्बानियाँ दी हैं। अब हमारी जो अहलिया होती हैं, हमारी अहलिया जो होती हैं, हम उनको कैसा प्यार जाहिर करते हैं, कैसी मोहब्बत दिखाते हैं? बताओ। बहुत लोग, बहुत मर्द ऐसे हैं कि उन पर जुल्म करते हैं, उन पर ज़्यादती करते हैं, हाँ, उनको सताते हैं, उनको तकलीफ़ देते हैं। बहुत औरतें भी ऐसी होती हैं, मर्द ही जालिम नहीं होते, कुछ औरतें भी जालिम होती हैं। और ये जालिम ही नहीं होते, कुछ बड़ी मोहब्बत करने वाले भी होते हैं, बड़े वफ़ादार भी होते हैं, बड़े अल्लाह के फरमाबरदार भी होते हैं, और एक दूसरे से अल्लाह के रज़ा के लिए बड़ी मोहब्बत करने वाले होते हैं। और सलाम है ऐसी मोहब्बत को जो अल्लाह के रज़ा के लिए मियाँ बीबी में मोहब्बत हो, माँ बाप में, औलाद में मोहब्बत हो। सलाम है ऐसी मोहब्बत को। अल्लाह हम सबको ऐसी मोहब्बत नसीब फरमाए कि हम अपने माँ बाप से भी मोहब्बत करें, अपने अहल अयाल से भी मोहब्बत करें, और अपने बीवी बच्चों से भी मोहब्बत करें। अल्लाह की कसम, आज का नेचर हमने क्या कर रखा है, कैसा बिगाड़ रखा है। अगर हम ही ख़राब होंगे तो सारा ज़माना हमें ख़राब लगेगा, अगर हम ही बिगड़े हुए हो जाएंगे तो हमें सब बिगड़े हुए लगेंगे। हमें अपने आप को बदलना है, अपने आप को बदलना है। हाँ, आज हम अपनी बीवी के साथ क्या करते हैं, बीवियों की कितनी बड़ी कुर्बानी पता है? हमें लगता है कि हमारी बीवी आ गई, हमारी शादी हो गई, हमें बीवी मिल गई। बीवी की कुर्बानियाँ पता नहीं है, कुर्बानी पता नहीं है, जिसमें उसने सारी ज़िंदगी जब से पैदा हुई और शादी के वक्त तक उनके साथ रही, उनकी औलाद बनकर, किसी की बहन बनकर, किसी की बेटी बनकर, किसी की पोती बनकर, किसी की ध्योती बनकर, यानी बहुत लोगों के, अपनी फैमिली के, अपने दादा दादी के, अपने नाना, यानी इतने लोगों की मोहब्बत में रही, फिर उनमें वक्त बिताया, फिर उनमें परवान चढ़ी, जवान हुई, फिर उनने अपनी फैमिली में हर दुख तकलीफ़ देखी, हर खुशी गम देखी, हर माहौल देखा, हर वक्त ऐसा देखा कि उसे उसी से ऐसी मोहब्बत हो गई कि ये मेरे हकीकत ही सब हैं, कि ये मेरे सब हैं, ये मेरी ज़िंदगी है, ये मेरी दुनिया है, ये मेरे प्यार हैं, कि ये मेरा सब कुछ है। और वाकई इंसान के लिए फैमिली ही सब कुछ होती है, फैमिली ही सब कुछ होती है। और वो लड़की देखो तो सही, वो सिर्फ एक बहू बनकर नहीं आई है, हाँ, कि बस बहू है, जैसा चाहो यूज़ करो, अब घर की मालकिन बनाओ, घर की नौकरानी बनाओ। लेकिन मेरे दोस्तों, इसका हिसाब किताब बड़ा सख्त है, इसका मामला बड़ा सख्त है। हाँ, कल अल्लाह जब इसका सवाल जवाब करेगा ना, जब पूछेगा कैसा हुस्न सलूक किया, मियाँ बीवी के बारे में पूछा जाएगा, बताओ कैसा हुस्न सलूक किया, अदा किया या नहीं किया। मेरे भाइयों, बड़ी कैनी सिचुएशंस हैं, इनको जाने, इनको पहचाने और आपस में मोहब्बत करने वाले बने। ये तो अपनी बीवी है, मोहब्बत करें, अपना शौहर है, मोहब्बत करें। जब इनमें आपस में मोहब्बत होगी ना, जब आपस में मोहब्बत होगी तो घर नहीं, घर जन्नत लगेगा। हाँ, ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है, ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है कि मर्द को नेक बीवी का मिलना।
अच्छी बीवी का मिलना, हाँ, जिससे वो मोहब्बत करे, दिलो जान लुटावे उस पर, ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। और औरत के लिए भी बहुत बड़ी नेमत है कि उसे नेक शौहर मिलना, हाँ, नेक इंसान मिलना, उससे मोहब्बत करने वाला हो, उस पर जान लुटाने वाला हो, ऐसा शौहर का मिलना अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। मेरे भाइयों, अल्लाह की रज़ा के लिए, अल्लाह की रज़ा के लिए आपस में मोहब्बत करो। हर मियाँ बीवी, दुनिया के हर मियाँ बीवी आपस में मोहब्बत करो, प्यार करो, और जितना हो सके खुश रहने की कोशिश करो। दुनिया में मर तो जाना ही है एक दिन, किसका दिल दुखाकर, किससे बात बिगाड़ कर, किसका दिल में बुरा रख कर, कैसे ज़िंदगी गुजार कर, ऐसे ज़िंदगी गुजार कर क्या कर लेंगे बताओ तो सही। ये हमारे ऊपर है, चाहो तो खुश रहें, चाहो तो गम में ज़िंदगी बिता लें, चाहो तो तकलीफ़ों के बारे में सोचते रहें, चाहो तो चेहरे पर मुस्कुराहट रख लो, चाहो तो इसे बिगाड़ कर रख लो। अपना चेहरा कैसे रख लो, क्यों ना इसे खुश ही रखा जाए, क्यों ना दिल को खुश रखा जाए, क्यों ना खुशहाली की ज़िंदगी बिताई जाए। अरे ज़िंदगी तो बीतनी ही है, घड़ी कौन सी रुकी है, वक्त कौन सा रुका है, टाइम रुकता नहीं है, टाइम चलता रहता है, चलता रहता है। अब ये हमारे ऊपर है, ये आपके ऊपर है कि इसे रो के बिताओगे या हंस के बिताओगे। ये जो सेकंडें जा रही हैं, ये जो मिनट चल रही हैं, इन्हों को हंस के गुजारने का इरादा है या रो के ही? हाँ, हंस कर, खुश होकर, अल्लाह के नेक बंदे बनकर आपस में मोहब्बत कर, बुग़्ज़ ना करो, हसद ना करो। किसी ने दिल दुखाया है, किसी ने दिल दुखाया है, माफ़ करो। अल्लाह की कसम, तुम माफ़ करोगे ना, तुम माफ़ करोगे, बड़े ध्यान देने वाली बात है, बड़े सोचने वाली बात है। थोड़ा ध्यान से सुनना। अगर किसी ने आपका दिल दुखाया हो, मर्द हो या औरत हो, बीवी हो या शौहर हो, माँ बाप हो या औलाद हो, अगर किसी ने किसी का दिल दुखाया है, रिश्तेदार हों, अहल अयाल हों, दोस्त हों या कैसे भी मिलने जुलने वाले हों, अगर किसी ने आपका दिल दुखाया है, अगर किसी ने आपका दिल दुखाया है, तो उसे अल्लाह की रज़ा के लिए माफ़ करें और कहें कि ए अल्लाह, मैंने तेरे लिए माफ़ किया, तू बेहतर इंसाफ करने वाला है, मैंने तेरे लिए माफ़ किया। अल्लाह की कसम, मेरा रब दिल को वो सुकून देगा, वो राहत देगा, वो इत्मीनान देगा, इतनी खुशी चेहरे को होगी, इतना निखर आएगा चेहरा, ज़िंदगी में मज़ा आएगा, लोगों से मोहब्बत होगी कि हमें लोगों की बुराइयां भी अच्छाइयाँ लगने लगेंगी। हम माफ़ करना तो सीखें, माफ़ करें, दिल से निकालें। अरे जैसा गम है, दुख है, तकलीफ है, छोड़ो। कहाँ की ज़िंदगी हमारी 500 साल की, 1000 साल की है? कहाँ कितनी ज़िंदगी किसी को कोई पता नहीं है। और फिर इसका हिसाब किताब भी होना है। एक तो मुख्तसर ज़िंदगी, फिर इसका हिसाब किताब भी, और फिर मुख्तसर ज़िंदगी में हिसाब किताब भी देना, और फिर इसमें हम बुग़्ज़ भी रखें, हसद भी रखें, किना भी रखें, आपस में जलन भी रखें, आपस में लड़ाइयाँ भी रखें, आपस में बोलचाल बंद रखें, फिर अल्लाह के हुक्मों को तोड़ें, फिर बंदों से नफरतें करें। ये कैसी ज़िंदगी गुजारें? फिर ये कैसे ज़िंदगी गुजारें? मेरे भाइयों, बड़ी मुख्तसर ज़िंदगी है, बड़ी मुख्तसर। इसे अल्लाह के हुक्म पर बिताओ, इसे खुश होकर बिताओ, इसे मोहब्बतें कर बिताओ, ताकि अल्लाह भी खुश हो, हम भी खुश हों, हम दुनिया में भी राहत भरी, सुकून भरी, मोहब्बत भरी ज़िंदगी गुजार कर जाएँ और अपने रब को राज़ी कर जाएँ, और दुनिया में रहते हुए लोगों के दिल जीत कर जाएँ। बीवी को चाहिए अपनी सास का दिल जीते, अपने ससुर का दिल जीते, अपने शौहर का दिल जीते, अपने घर वालों का दिल जीते, और फिर सब अल्लाह के बंदों का दिल जीते। दिल कैसे जीते? नेक बनकर रहे, अच्छी बनकर रहे, ऐसे अल्फाज न बोले कि किसी के दिल को ठेस पहुँचाएं, किसी के दिल को तकलीफ़ पहुँचाएं। ऐसे अल्फाज इस्तेमाल न करें, ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करें उनको बातें अच्छी लगें। हाँ, ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करें कि वो गलत कामों से रुकें। अगर कोई बंदा किसी का दिल दुखा रहा है, उसे मोहब्बत से समझाओ, बड़े प्यार से समझाओ। सबसे पहले खुद माफ़ करना सीखो। खुद माफ़ किया अल्लाह की रज़ा के लिए। अल्लाह की कसम, जो जुल्म करने वाला होगा ना, जुल्म करने वाला, वो उतना ही शर्मिंदा हो जाएगा जितना उसने बड़ा जुल्म किया होगा, उससे ज़्यादा वो खुद शर्मिंदा हो जाएगा कि इसने तो माफ़ कर दिया। ये कैसा इंसान है, ये क्या इंसान है, मैंने उसके साथ ऐसे ऐसे गलत किया, इसने माफ़ कर दिया। मैंने इसके साथ ऐसा सुलूक किया, इसने मुझे मोहब्बत का सिला दिया। मैंने इसका दिल दुखाया, इसने फिर भी मुझसे मोहब्बत करी।
माफ़ करने में जो सुकून है वो बदला लेने में नहीं है, वो बदला लेने में नहीं है। माफ़ करना सीखो, लोगों के दिल जीतना सीखो, गलत कामों से लोगों को रोको, अल्लाह के हुक्मों के बारे में उनको बताओ, हुस्न सलूक के बारे में उनको बताओ, अच्छे अखलाक से पेश आओ, अपने अखलाक दिखाओ कि हमारा इस्लाम हमें क्या सिखाता है, हमें कैसी मोहब्बत का हुक्म देता है कि अल्लाह के बंदों का किसी का भी दिल न दुखाना। ये तो ईमान वाले हैं, ये तो मुसलमान हैं, गैर ईमान वाले भी, भले हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, क्रिश्चियन हो, किसी भी धर्म से हो, किसी भी कास्ट से हो, हमारा इस्लाम नहीं सिखाता किसी को धोखा दो, किसी का दिल दुखाओ, किसी से नफरत करो। हमारा इस्लाम नहीं सिखाता, ये अल्लाह का हुक्म नहीं है, नबी का तरीका नहीं है। हमारा इस्लाम सिखाता है दुनिया में किसी भी धर्म का इंसान हो, किसी भी धर्म का बशर्ते के इंसान हो, उससे मोहब्बत करो, उससे प्यार करो। हालांकि तमाम अल्लाह की मखलूक है, मोहब्बत सबसे करो, लेकिन इंसान किसी भी कास्ट का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी ज़िले का हो, किसी भी मुल्क का हो, किसी भी शहर का हो, किसी भी कस्बे का हो, किसी भी गांव का हो, कहीं का भी हो, मोहब्बत करो, मोहब्बत करो, मोहब्बत करो अल्लाह की रज़ा के लिए। उसका दिल न दुखाओ, उसका दिल न दुखाओ, उससे झूठ न बोलो, उसे धोखा न दो, हाँ धोखा न दो। और फिर जब हमारे अल्लाह का हुक्म है, जब हमारे इस्लाम के रूल हैं कि हमें किसी को धोखा नहीं देना है, किसी का दिल नहीं दुखाना है, किसी से नफ़रत नहीं करनी है, किसी से बुग़्ज़ नहीं रखना है, सबसे मोहब्बत करनी है, मोहब्बत के इजहार करने हैं, इखलास से पेश आना है, अल्लाह के हुक्म को बताना है, अल्लाह के हुक्म की तरफ लाना है, बुरे कामों से रुकना है, बदसलूकियों से बचना है, बुरे अखलाक से बचना है। हमारा इस्लाम हमें ये सिखाता है, ये बताता है किसी से नफ़रत ना करो, किसी से नफ़रत ना करो। और फिर हम अल्लाह के नेक बंदों से, मुसलमानों से, ईमान वालों से ही नफ़रत करें, बुग़्ज़ करें, आपस की लड़ाइयाँ लड़ें, और फिर हम अपने ही घरों में बोलचाल बंद कर लें, अपने ही शोहर से, बीवी के शोहर से लड़ाई, शोहर की चलो होती है, घर की लड़ाइयाँ आपस में बन जाती है, लेकिन मेरे भाइयों मुख्तसर ज़िंदगी है, मुख्तसर। अल्लाह बड़ा खुश होता है जो मेरे भी बड़े खुश रहते हैं, बड़ा खुश होता है। मुख्तसर से ज़िंदगी बिताओ ना, खुशहाली की ज़िंदगी बिताओ अल्लाह के बंदो। क्या लड़ाइयाँ, उसकी लड़ाई, इसकी लड़ाई, उसकी लड़ाई, इसकी लड़ाई, ये कैसी ज़िंदगी है? इन्हीं मशगलों में मशगूल होकर, इन्हीं मगनों में मगन होकर, इन्हीं दुख तकलीफ़ों में घूमकर अरे ज़िंदगी गुजर जाएगी, ऐसी बुढ़ापा आ जाएगा, ये टेंशन कभी ख़त्म नहीं होंगी। अब देखो ना, आप जवान हो गए, कल आपके बाप दादा भी, कल आपके बाप दादा भी, माँ बाप भी, कल बच्चे थे, वो भी 5-10 साल के थे, उनको जब भी टेंशनें थी और वो तुम्हारे बाप बन गए, वो बूढ़े हो गए, अब वो उस हालत को पहुंच गए कि वो कमज़ोर भी हो गए, अब तुम खुद बूढ़े होने को आ गए हो, तुम्हारे बाप दादा भी बूढ़े हो गए हैं। अरे उनकी टेंशन बचपन से लेकर आज तक ख़त्म नहीं हुई हैं, उनकी टेंशन बचपन से लेकर जवानी तक आ गई, टेंशनें ख़त्म नहीं हुई, जवानी से लेकर बुढ़ापे तक आ गए, ये दुख गम ख़त्म नहीं हुए, ये परेशानियां ख़त्म नहीं हुई, ये टेंशनें ख़त्म नहीं हुई, ये लड़ाइयाँ ख़त्म नहीं। जब हमारे माँ बाप की, हमारे बाप दादा की, इनकी ख़त्म नहीं तो हमारी कैसे ख़त्म हो जाएंगी? अल्लाह के बंदो सोचो तो सही, हमारी कैसे ख़त्म हो जाएंगी? अरे किसी की ख़त्म नहीं होती। अरे खुश रहना सीखो, ये मुख्तसर हमारी ज़िंदगी, मुख्तसर वक्त है, सबकी ज़िंदगी गुजर रही है, हम तो अच्छे बने। जब उनकी ख़त्म नहीं हुई, हमारे बाप दादों की लड़ाइयाँ अब भी चल रही हैं, अब भी परेशान हैं, अब भी लड़ते हैं, अब भी उल्टा सीधा बोलते हैं, अब भी उसका हसद है, अब भी उसका बुग़्ज़ है, अब भी उसकी बात का बुरा मान कर बैठे हैं, अब भी उसको गलत कह देते हैं। अरे मेरे भाइयों, जब उनका बुढ़ापा तक आ गया, बचपन से लेकर उनकी ये टेंशन आज तक ख़त्म नहीं हुई हैं, तो ये हमें जो अब मिल रही हैं बचपने में, जवानी में, इन हालतों में, आज के वक्त में, आज के दिन में जो हमें मिल रही हैं, तो जाहिर सी बात है बुढ़ापे तक ही रहेंगी। तो इन तकलीफ़ों में, इन गमों में, इन परेशानी में क्यों मुब्तला हो मैं? क्यों इन्हों को लिफ्ट करा मैं? क्यों इन्हों में मशगूल हो मैं? क्यों इन्हों में पढ़ें? अरे दुख तकलीफ़ें तो आती जाती तो हमेशा की हैं, दफ़ा करो, हटाओ, साइड हटाओ, सबको माफ़ करना सीखो अल्लाह के लिए, सबको माफ़ करो, छोड़ो मत तकलीफ़ लो, छोड़ो मत गम करो, जो होगा सही होगा, अल्लाह बेहतर करेगा, सबको माफ़ करो, खुशहाली रहो। अरे मेरे भाइयों, अपनी फैमिली में प्यार मोहब्बत से रहो। अल्लाह की कसम, जो मैंने अपनी आँखों से देखा है वो बता रहा हूँ, जो देखा है। आप इसको कभी ट्राई करना, कभी सोचना, आपकी नज़र में जो सबसे बुरा इंसान हो, सबसे बुरा,
सबसे एटीट्यूड वाला, सबसे ज़्यादा घमंड वाला, सबसे ज़्यादा जुल्म करने वाला, हाँ ऐसा इंसान हो। अभी तो नेक की बात ही नहीं कर रहा, अच्छों की बात ही नहीं कर रहा। अच्छे तो अच्छे ही होते हैं, नेक तो नेक ही होते हैं। ये बुरे इंसानों की बता रहा हूँ। बुरे इंसान देखो तो सही, बुरे इंसान कैसे होते हैं। जुल्म करने वाला, बदसलूकी करने वाला, जब उससे तुम अकेले में मिलो, उसके साथ थोड़ा वक्त गुजारो, उसे थोड़ी मोहब्बत दिखाओ, इखलास दिखाओ, प्यार दिखाओ, प्यार से बातें करो। अल्लाह की कसम उससे ज़्यादा अच्छा इंसान कोई नहीं लगेगा। फिर उससे बात करके तो देखो। जो सबसे बुरा इंसान है उसके अंदर की आदत तो देखो क्या है, उसका इखलास तो देखो। वो अल्लाह से ऐसे डरता है जैसे हम भी नहीं डरते। अल्लाह हमें माफ़ करे। एक बात कहता हूँ, जैसे हम लोग गुनाह करने पर अल्लाह से नहीं डरते हैं, हम कैसे कैसे काम करते हैं। इसका दिल दुखा दिया, वो कर दिया, ये कर दिया, वो करते हैं इन कामों को, लेकिन अल्लाह से बहुत डरते हैं। बड़े सीधे वो बेचारे, लेकिन अड़ जाते हैं। जुल्म है तो जुल्म, लड़ाई है तो लड़ाई। कोई समझाने वाला नहीं है, कोई कहने वाला नहीं है। वो उनके दिल बड़े अच्छे होते हैं, बड़े प्यारे होते हैं, बड़े अच्छे अंदाज वाले होते हैं, लेकिन हम क्या है, बस बुराइयाँ ही देखते हैं, बुराइयाँ ही देखते हैं। बुरे इंसानों में भी बहुत ज़्यादा अच्छाइयाँ हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे लोग हैं, बहुत खूबियाँ हैं उन लोगों के अंदर। हम देखने वाले तो बने, हम देखने वाले तो बने। मेरे से बहुत ऐसे भी लोग मिलते हैं जो, बुरा तो नहीं कहता मैं, लेकिन बहुत अच्छे हैं। ज़माना कहता होगा बुरा, बहुत अच्छे से पेश आते हैं। उनकी आदतें तो देखो, अरे करते होंगे जुल्म, करते होंगे ज़्यादती, होंगे बुरे इंसान, लेकिन मेरे भाइयों, जब पत्थर पिघल सकता है तो इंसान क्यों नहीं पिघल सकता। अपनी मोहब्बत दिखाओ। देखो तो सही, फिर कैसी कैसी मोहब्बतें तुम देखते हो। आज हम खुद बुरे बनकर बैठ गए हैं, आज हम खुद ही जालिम बनकर बैठ गए हैं, आज हम खुद ही लोगों का बुरा मानने लगते हैं, आज हम खुद ही लोगों के दिल तोड़ देते हैं, खुद लोगों के दिल तोड़ कर बैठे हैं। फिर कहते हैं कि हमें सुकून क्यों नहीं मिल रहा। बीवी से लड़ाई, माँ बाप से लड़ाई, भाई बहनों से लड़ाई, दोस्तों से लड़ाई, अल्लाह के बंदों पर जुल्म करना, उनको सताना। इनसे तौबा करो, इनको माफ़ करो। अल्लाह के लिए सबको माफ़ करना सीखो, किसी पर जुल्म ना करो, किसी को ना सताओ। ऐसे जुमले न बोलो कि उसका दिल टूट जाए। गोली का मारा तो मर जाता है, तलवार का मारा भी मर जाता है, हाँ अल्फाज का मारा। मेरे भाइयों, ये अल्फाज खंजर की तरह लगते हैं, खंजर की तरह। खंजर का मारा भी मर जाता है, लेकिन ये अल्फाज का मारा नहीं मरता। वो रोज रोज मरता है लेकिन नहीं मरता। इंसान चेहरे भूल जाता है, लेकिन सारी ज़िंदगी अल्फाज याद रहते हैं, बातें याद रह जाती हैं कि फ़लाँ ने मुझे ये कह दिया था, फ़लाँ ने मुझसे ऐसे कह दिया था, फ़लाँ ने मुझसे वो कहा था, फ़लाँ ने मुझसे ऐसे कहा था। इंसान चेहरे भूल जाता है, बातें याद रखते हैं। तो ये अल्फाज ऐसे इस्तेमाल करो, कल इनका सवाल जवाब भी देना है, इनका हिसाब भी होना है। ये जो दो बैठे हैं ना हमारे पार्टनर, ये जो दो हमारे साथी बैठे हैं किरामन कातिबीन, इनका खाता चल रहा है, कलम चला रहा है, धड़ाधड़ लिख रहे हैं। बोलो अल्फाज, बोलो। किसी का दिल जीतो या दिल तोड़ो, किसी को धोखा दो या किसी का नफ़ा करो, किसी से मोहब्बत करो या नफ़रत करो। बोलो तुम्हारे अल्फाज, तुम्हारे जुमले कैसे अदा होते हैं। वो सब लिख रहे हैं, कैसे काम कर रहे हो सब लिख रहे हैं। तो जब हमें पता है सब चीज़ों के बारे में, तो मेरे भाइयों क्यों ना ज़िंदगी अच्छी बिताई जाए। बड़ी मुख्तसर सी ज़िंदगी है, अरे खुश रहकर बिता में। जब हमारे माँ बाप की टेंशनें ख़त्म नहीं होती हैं तो हम तो उनकी औलाद हैं, हमारी कैसे ख़त्म हो जाएंगी। और फिर हमारे बाप दादा भी इसी टेंशन में रही, उनकी टेंशनें लास्ट स्टेज तक ख़त्म नहीं हुई। मेरा काम, मेरा कारोबार, इसकी बात, उसकी बात, इसकी अरे छोड़ो इसकी उसकी बातों को। अल्लाह के बंदो, खुशी खुशी ज़िंदगी बिताओ, खुशी खुशी। अब देखो ना, हमारी अहलिया जो हमारी बीवी होती है, वो कितनी बड़ी कुर्बानियाँ देकर आती है, कितनी बड़ी कुर्बानियाँ। वो अपने माँ बाप, कोई पसंद करता है माँ बाप को छोड़ना? बताओ तो सही, कौन पसंद करता है माँ बाप को छोड़ना? कोई पसंद नहीं करता। लेकिन एक लड़की जो दूसरे के घर में जाती है उसकी बीवी बनकर, वो अपने माँ बापों को छोड़कर आती है, कितनी बड़ी कुर्बानी है। वो अपने भाइयों को छोड़कर जाती है, वो अपनी बहनों को छोड़कर जाती है, वो अपने दोस्तों को, अपनी सहेलियों को, जिसमें उसका दिल लगता था,
जिसमें उसका जी लगता था, जिससे वो मोहब्बत करती थी। अपने माँ बाप के बिना घर में एक दिन न काटती थी, अपनी बहन के बिना उदास हो जाया करती थी, अपने भाइयों से बगैर बात किए न रहती थी। उसका दिल बड़ा उदास रहता था। वो बात करना सबसे पसंद करती थी। वो किसी से खामोश रहना नहीं चाहती थी। वो तन्हा नहीं रहना चाहती थी। वो इनको छोड़ना नहीं चाहती थी। लेकिन फिर एक वक्त ऐसा आता है, उसे घर छोड़कर जाना पड़ता है। वो फिर दूसरे घर में चली जाती है। वो दूसरे घर में चली जाती है। फिर वो अपनी सारी खुशियां छोड़कर फिर वो दूसरों के हवाले हो जाती है। इसने इतनी बड़ी कुर्बानियां हमारे लिए दी, और फिर हम इससे मोहब्बत न करें, फिर हम इस पर जुल्म करें, फिर हम इसकी कदर न करें। वो सारी चीज़ों को छोड़कर वो दूसरे घर चली जाती है, इतनी कुर्बानियाँ देकर आती है, फिर हम इससे मोहब्बत न करें, फिर हम इससे प्यार न करें। अरे मेरे भाइयों, ये कैसी वफा है। फिर सास बहुओं वाली लड़ाइयाँ, नंद भाभियों वाली लड़ाइयाँ। अरे मेरे भाइयों, इनकी फीलिंगों को समझो। आज हमारे घर में आई है, कल हमारे घर से भी जाएगी। अरे देखो तो सही, आज कोई हमारी बीवी बनकर आई है, कल हमारी बेटी भी किसी की बीवी बनेगी, कल हमारी बहन भी किसी की बीवी बनेगी। अरे मोहब्बत करो। सबसे बड़ी चीज़ एक गम है, एक दुख है। अगर हम ये लोगों को देंगे तो हम कहाँ से खुश रह पाएंगे। जब अल्लाह के बंदों के दिलों को दुखाएंगे तो कहाँ से खुश रह पाएंगे। मेरे भाइयों, हमारी बीवियाँ इतनी बड़ी कुर्बानियाँ देकर आती हैं, फिर उनके माँ बाप अपनी बेटी के लिए कैसे बिलखते हैं। मैंने देखा है। अभी इसी महीने में 27 नवंबर में हमारी बहन की शादी हुई, मेरी बहन की शादी हुई, और मैं देखता हूं कि बात नहीं कर सकता, लड़ता हूं कि कोई बात नहीं कर सकता, कैसे जाहिर करें। फिर हम अपनी बहनों के दिल दुखाए, फिर हम अपने माँ बापों के दिल दुखाए। अरे माँ बाप चलो कह देते हैं सामने, अच्छा बुरा भी कह देते हैं, फिर हम अपने माँ बापों से लड़ाएं, हम अपने माँ बापों को तकलीफ दें। फिर पता है वो हमारे बाद कैसे रोते हैं, कैसे बिलखते हैं। जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते वो भी रोता है, जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते, फिर हम उनको तकलीफ देते हैं। फिर हम किसी की बेटी को अपने घर में लाकर उसको तकलीफ देते हैं। वो सब कुछ हमारे लिए छोड़ कर आई, फिर हम उसको तकलीफ दें। फिर हमारी बेटी भी तो किसी घर में जाएगी, फिर उसके साथ ऐसा ना होगा। बताओ तो सही। मेरे भाइयों, सबसे मोहब्बत करो, मोहब्बत भरी ज़िंदगी गुजारो। मेरे भाइयों, बड़ी मुख्तसर ज़िंदगी है। किसी को दुख ना दो, किसी के दिल ना दुखाओ, किसी को ताने कशी ना करो। ये आजकल हमने अपने घरों का कल्चर बड़ा ख़राब कर रखा है। हमने अपने घरों में तबाहियाँ मचा रखी हैं। भाई की भाई से नहीं बनती है, बहन की बहन से नहीं बन रही है, माँ बाप की औलाद से नहीं बनती है। माँ बापों को डर लगता है औलाद से बात करते में। ये बदसलूकियाँ, ये माँ बाप के साथ बदसलूक करना, बदसलूकी से पेश आना, ये दिलों को फाड़ देना, दिलों को चीर देना, दिलों को जख्मी कर देना। फिर घरों में तबाहियाँ तो आएंगी ही। जब माँ बाप को नाराज़ करेंगे, बीवियों को नाराज़ करेंगे, बीवियाँ शोहरों को नाराज़ करेंगी। सबका यही हाल है। मेरे भाइयों, कहने का मकसद यह है, बीवी शोहर से मोहब्बत करे, शोहर बीवी से मोहब्बत करे। किसी गलत काम की तरफ माइल न हो, किसी गैर की तरफ माइल न हो, किसी गैर की तरफ न देखे। बीवी सारी मोहब्बत अपने शोहर से करे और शोहर सारी मोहब्बत अपनी बीवी से करे। और बीवी को चाहिए कि अपने सास ससुर को ऐसे ही माँ बापों वाला प्यार दे जैसे अपने माँ बाप को देती है। फिर देखना सास ससुर भी वही प्यार देंगे जो अपनी बेटी को देते हैं। अल्लाह की कसम, पत्थर भी पिघल जाते हैं तो हम दिल नहीं पिघला सकते।
हम प्यार नहीं दिखा सकते, हम लड़ाइयों में अपने सारे तरीके सारे रंग दिखा देते हैं, अपनी इंसानियत को छोड़कर हैवानियत भी दिखा देते हैं। क्या हम अपने इखलास नहीं दिखा सकते, अपना प्यार नहीं दिखा सकते, अपनी मोहब्बत नहीं दिखा सकते? मेरे भाइयों, मोहब्बत दिखाओ, माफ़ करना सीखो, माफ़ करना सीखो, मोहब्बत करना सीखो, दिल जीतना सीखो, दिल ना तोड़ो, दिल ना तोड़ो। अल्लाह की रज़ा के लिए माफ़ करना सीखो, सबको माफ़ करो। फिर देखो ज़िंदगी कैसी खुशियों की ज़िंदगी बीतती है, फिर देखो ना ज़िंदगी जीने में कितना मज़ा आता है। आज कितने घर ऐसे हैं जो बिल्कुल तबाह हुए पड़े हैं, तबाह हुए पड़े हैं। किसी की किसी से नहीं बनती है, किसी की किसी से नहीं बनती है, कोई किसी से खुशी नहीं रहता है। अरे मेरे भाइयों, इसी हालत में मर गए तो क्या होगा, क्या होगा इसी हालत में मर गए? अरे छोड़ो इन बुरी बातों को, छोड़ो इन दिल के दुखानों को। बड़ी मुख्तसर सी ज़िंदगी है, खुशहाली की ज़िंदगी गुजारो, खुश रहकर ज़िंदगी गुजारो, मोहब्बत के साथ प्यार करते हुए ज़िंदगी गुजारो। हाँ, अल्लाह के लिए, अल्लाह के बंदों से मोहब्बत करते हुए ज़िंदगी गुजारो। किसी को धोखा न दो, किसी को धोखा न दो, किसी से झूठ न बोलो, झूठ न बोलो। झूठ एक बहुत बड़ा गुनाह है, झूठ एक गुमराही है, झूठ दिलों को फाड़ देता है, दिलों को चीर देता है, झूठ घरों में आग लगा देता है, झूठ एक प्यार भरे मोहब्बत भरे घर में दरार डाल देता है। सच बोलो, सच बोलो, सच बोलने की कोशिश करो, झूठ ना बोला करो। अल्लाह के लिए, अल्लाह के लिए खुशी खुशी ज़िंदगी बिताओ, अल्लाह को राज़ी कर कर ज़िंदगी बिताओ। ऐसी ज़िंदगियाँ ना बिताओ कि हमारे भी दिल फटे रहें, अल्लाह के बंदे भी नाराज़ रहें और अल्लाह भी नाराज़ रहे, अल्लाह के हुक्म भी हमारी ज़िंदगी से जाते रहें, अल्लाह के नबी के तरीके भी हमारी ज़िंदगी से निकलते रहें। ऐसी ज़िंदगियाँ ना बिताओ, ऐसी। ये बड़ी मुख्तसर ज़िंदगी है, ये इम्तिहान की जगह है, इम्तिहान की जगह है। इस मुख्तसर ज़िंदगी में ही दिल को दुखा कर, परेशान होकर, परेशान मुब्तला रह कर ही अगर परेशान ही रहते मर जाएंगे तो क्या फ़ायदा ऐसी ज़िंदगियों का, क्या फ़ायदा? इसका फ़ायदा उठाओ, अल्लाह को राज़ी करो, अल्लाह के बंदों से मोहब्बत करो, अल्लाह के लिए, अल्लाह के लिए। जो गलत है, जो गलत है समझाओ, समझाओ। किसी की बात का बुरा लग गया, किसी की बात का बुरा लगा है दिल को, उससे बात करो, दिल में ना रखो, उससे बात करो, प्यार से बात करो। अल्लाह ने दिमाग दिया है, मोहब्बत के साथ बात करो, प्यार से समझाओ, अपने तरीके से समझाओ। हाँ, फिर देखो कैसी मोहब्बत होती है, कैसा प्यार होता है। दिल फाड़ना नहीं, दिल तोड़ना नहीं, दिल जीतना सीखो, सबसे मोहब्बत करना सीखो, अल्लाह से मोहब्बत करना सीखो, नबी से मोहब्बत करना सीखो, उनके हुक्मों को पूरे करना सीखो, नबी के तरीक़ों को अपनाना सीखो। फिर देखो ज़िंदगी में कैसा सुकून आता है, फिर देखो अल्लाह कैसी नेमत बरसाता है, फिर देखो अल्लाह कैसी इज़्ज़त अता फरमाता है, फिर देखो अल्लाह कैसी मोहब्बत अता फरमाता है, फिर देखो अल्लाह कितने फिर दिलों को साफ़ करता है, फिर देखो ज़िंदगी में कितना सुकून मिलता है, फिर देखो अल्लाह अपने बंदों को किस मोहब्बत से नवाजता है। फिर अल्लाह कहता है जिसने अल्लाह के बंदों से मोहब्बत की अल्लाह की रज़ा के लिए, अल्लाह ने भी उनसे मोहब्बत की, अल्लाह भी उनसे मोहब्बत करता है। हाँ मेरे भाइयों, और हमें इसका हिसाब किताब भी देना है, हमें हिसाब किताब भी देना है। तो अपने अल्लाह को राज़ी करते हुए, अपने अल्लाह के हुक्मों को पूरे करते हुए ज़िंदगी गुजारो, ज़िंदगी गुजारो। किसी को दुख न दो, किसी को तकलीफ़ न दो, किसी से ऐसी बातें ना कहो, किसी को ऐसे जुमले ना बोलो कि उसके दिल को ठेस पहुँचे, उसके दिल को ठेस पहुँचे। ये अल्फाज खंजर की तरह काम करते हैं, ये अल्फाज ऐसे काम करते हैं, ऐसे काम करते हैं। चाहो तो दिल जीत लो, चाहो तो दिल फाड़ दो। इंसान सारी ज़िंदगी नेक काम करता रहता है, अच्छे काम करता रहता है। अगर उसने एक ऐसा जुमला बोल दिया, एक ऐसा जुमला कह दिया, वो सब की निगाहों से गिर जाएगा, उसकी इज्जत सब ख़त्म हो जाएगी। मेरे भाइयों, ये अल्फाज बड़े कीमती हैं, बड़ी ताकत रखते हैं। ये तुम्हें ज़मीन से लेकर आसमान तक पहुंचा सकते हैं, अपने रब को राज़ी करवा सकते हैं, अपने रब को, हाँ अपने रब को। ये अल्फाज ऐसी चीज़ है, ये अल्फाज ऐसी ताकत रखते हैं, ऐसी क़ुव्वत रखते हैं। अगर तुम इनको अच्छी तरह से बोलोगे, अच्छी तरह से जुमले अदा करोगे, हक़ और सच बोलोगे, किसी के दिल दुखाने वाली बात ना करोगे, तो ये अल्फाज आपको धरती से लेकर आसमान से मिला सकते हैं, जन्नत तक पहुंचा सकते हैं। हाँ, ये रब को राज़ी करवा सकते हैं ये अल्फाज। और ये अल्फाज अगर हम गलत कहेंगे, गलत बोलेंगे, तो आसमान से ज़मीन पर पटक कर मार देंगे, जन्नत से जहन्नम में गिरवा देंगे और अपने रब को भी नाराज़ करवा देंगे। और ये दुनिया में बेहयाइयाँ
عام کروا دیں گے، لوگوں کے دل توڑ دیں گے۔ یہ الفاظ بہت طاقت رکھتے ہیں میرے بھائیوں اور بہنوں، ان الفاظوں کو بڑی سوچ سمجھ کر کہا کریں، بڑی سوچ سمجھ کر۔ کسی کا دل نہ دکھے، کسی کا دل نہ دکھے، کوئی پریشان نہ ہو، کوئی ہمارے الفاظوں کے تانوں میں آنسو بہا کر اللہ سے کہنے نہ لگے کہ پھر اللہ بڑے فیصلے کرنے والا ہے، پھر اللہ بڑا انصاف کرنے والا ہے اور ایک عدالت وہاں بھی لگنی ہے۔ کسی کو ایسے نہ کہیں۔ بڑی مختصر سی زندگی ہے، خوشی بتائیں، پیار محبت سے بتائیں اور اللہ کی رضا کے لیے آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرتے رہیں۔ ہاں، محبت کرتے رہیں، کریں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ اللہ ہم سب کو گناہوں کو معاف فرمائے۔ اللہ تعالیٰ دنیا میں جتنے بھی میاں بیوی ہیں سب میں پیار محبت پیدا فرمائے اور ہم اپنے ماں باپ کا فرما بردار بنائے اور ہم سب کو گناہوں کو معاف فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو دونوں جہانوں میں کامیابیاں بلندیاں نصیب فرمائے۔ آمین۔